જો આ મીટિંગ ને આપણે રેકોર્ડ પણ કરી શકીએ. એટલે બરાબર બરાબર. જે બી વાત થઈ છે એ આપણે ફરી એના ઉપર રિવ્યુ કરવું એ કરી શકીએ. થઈ શકાય. હા હે ને? તો હા ફર્સ્ટ હા. ઓફ ઓલ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન કે થેન્ક યુ તમે થેન્ક એક યુ. સરસ બિઝનેસ ની અંદર એન્ટર થયા છો કે જેમાં એક પણ રૂપિયાનું રોકાણ નથી અને ઇન્કમ કમાવાનો અનલિમિટેડ પોટેન્શિયલ છે. તમે ઘણી બરાબર. બધી income અહીંયાથી કરી શકો છો. પણ હમ હમ. આમાં જોડાનાર 1000 વ્યક્તિમાંથી કદાચ 15 યા 20 વ્યક્તિઓ એવા હશે કે જે લોકો કંઈક સારું એવું કમાતા હોય. બરાબર. કેટલા? 1000માંથી 15-20 લોકો એવા હોય કે જે લોકો કંઈક સારું કમાતા હોય. એનો મતલબ 1 થી 2% લોકો જ છે જે આમાં કંઈક સમથિંગ કરતા હોય. કરતા હોય છે. હા હા. હે ને? તો હવે તમારા માટે એ સવાલ છે કે એ 1000માંથી જે 980 લોકો રહ્યા, હમ જે હમ. કંઈ ખાસ કમાણા નહીં, કોઈ 200 કમાણા, કોઈ 50 કમાણા, કોઈ કશું ના કમાણા, એવા બનવું બરાબર. છે કે એ 15-20 લોકો જે બને એવું બનવું છે. ના ના, 15-20 માં જ આપણી ગણતરી લેવાની. 15-20 માં જ લેવાનું, બરાબર? તો હા. આપણે ખરેખર સક્સેસ જવું હોય તો હમ સફળતા હમ. માટે કોઈ બી, ધારો કે એક બાળક છે, એને સ્કૂલની અંદર સારા માર્ક લાવવા હોય, હમ હમ. બરાબર, ભણતો હોય, તો એના માટેના અમુક સ્ટેપ છે, એ ફોલો કરે તો એ સારા માર્ક લઈ શકે. અને હા એને હા. સિવાયના બીજા સ્ટેપ ફોલો કરે તો એ સારા માર્ક ન લઈ શકે. બરાબર. સારા સિમ્પલ સ્ટેપમાં શું છે કે ભાઈ એને છે ને સૌથી પહેલા ટીચરને રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ. બરાબર. બીજું છે ટીચર જે ભણાવતા હોય તો શાંતિથી ધ્યાન આપીને ભણવું જોઈએ. હમ હમ. બીજી વસ્તુ, એને કંઈ પણ સવાલ હોય તો એ ટાઈમે પૂછીને સોલ્વ કરી લેવો જોઈએ. બરાબર. એ બરાબર. પછી હોમવર્ક આપ્યું હોય હોમવર્ક કરીને આવવું જોઈએ. ઘરે મા બાપને કીધું હોય કે ભાઈ આટલું 2 કલાક વાંચવાનું, રિપેર તો કરી દેવું જોઈએ. એને જે જે ગાઈડલાઈન આપવામાં આવે છે, જો હમ એ હમ. કરશે તો શું થશે? એના માર્ક સારા આવશે. સારા પણ આવશે. જો એ પ્રમાણે નહીં કરે તો મેડમ ભણાવતા હશે ને બાજુ વાતો કરતો હશે, હમ મેડમે હમ. હોમવર્ક કર્યું હશે ને ઘરે કરી નહીં લાવે, તો આ બધું કરશે તો માર્ક સારા આવશે ને? ના આવે ના આવે. નહીં આવે. બરાબર. તો આપણા બિઝનેસની અંદર સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં રજીસ્ટર થઈ શકે છે. હમ હમ. હવે બે ટાઈપની સ્કૂલ છે. એક સ્કૂલની અંદર એવું કે છે કે ભાઈ તમારે 80%થી વધારે માર્ક આવ્યા હશે આગલા ધોરણમાં, અથવા તો તમારો ટેસ્ટ લેશું, એ લોકોને આપણે એડમિશન આપશું. બરાબર. બીજી સ્કૂલ એ છે તમે ગમે તેને લઈ આવો, કોઈ બી લઈ આવો, આલિયો માલિયો ટાલિયો, કશું ભણેલો હોય ના હોય, એ લઈ આવું એડમિશન આપો. હવે એક હા એ હા. સ્કૂલ છે એમાં એ એક ટેસ્ટ લેશે, ટેસ્ટમાં અમુક માર્ક પછી જ એડમિશન આપે છે. બીજી સ્કૂલ હમ છે હમ. નંબર બી સ્કૂલ, જેમાં ગમે તેને લઈ લે છે. તમે બરાબર. મને એમ કહો કે આ બેમાંથી કઈ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ વધારે સારા માર્ક લાવતા હશે? એ વાળા જ લાવે ને. એ વાળા જ લાવે. બરાબર. તો હા આપણા હા. વેસ્ટેજની અંદર શું છે? વેસ્ટેજની અંદર કોઈ ચાર્જ નથી. એટલે બરાબર. ગમે તે આવી જાય, જેને કરવાની ઈચ્છા ના ગમે હોય એ પણ ત્યાં છે. આવી જાય. બરાબર. હા મોટા હા ભાગના હા. મોટા ભાગના લોકો તો એ જ આવતા હોય કે ભાઈ મનીષભાઈ કમાય છે તો ચલો હું બી જતો, હું બી કમાય. ભાઈ એ રીતે ના થાય. તો એ રીતે ના કોઈ, કમાવાય. બરાબર, હે ને, સાચી વાત. કોઈનું મેલ જોઈને આપણે ઝૂંપડું આપણે ના હળગાઈ દેવાય. એમ ના અડગે. એટલે મોટા ભાગના 95% લોકો એ રીતે જોઈન થાય છે કે બીજાનું જોઈને જોઈન થાય છે. આ સરસ જોઈને. છે, હા. કરવા જેવું છે, આ જોરદાર કમાય છે તો હું બી કમાઈ જઈશ. એ રીતે હમ સક્સેસ હમ. નહીં મળે. સક્સેસ માટે તમારે કંઈ ના કંઈ એના માટે એક સિસ્ટમેટિક પરિશ્રમ કરવો પડે, મહેનત કરવી પડશે. હમ સિસ્ટમેટિક હમ. એપ્રોચ કરશો ત્યારે તમને સફળતા મળશે. જો એ નહીં કરો તમને સફળતા નહીં નહીં મળે. મળે. આમાં જેમ જે 1000માંથી 980 લોકો ગાળો દે છે બહાર જઈને હમ કે આ તો હમ. બેકાર છે, આ તો નથી ચાલતું, એવું તમે પણ દેશો. હા હા હા. કારણ કે તમે શું કર્યું છે? તમારી રીતે કર્યું છે. હા હા. મન ફાવે રીતે. બરાબર. પહેલી વસ્તુ એ છે કે ભાઈ તમે એકદમ નવા હોય હમ હમ. તો તમારે બહુ ઉત્સાહમાં આવી જવાની જરૂર નથી હમ હમ. કે હું આમ કરી દઈશ ને આમ થઈ જશે. થોડી શાંતિ રાખવાની. બરાબર. કારણ કે આમાં 1 મહિનામાં લડી નથી લેવાનું બધું આપણે. આપણે પાસે ઘણો બધો ટાઈમ છે કામ કરવાનો. બરાબર. એટલે ઉતાવળ નથી કરવાની. સમજી ગયો સમજી ગયો. અને માનો કે તમને ઘણું બધું આવડતું હોય, હમ હમ. તમે અનુભવી હોય, કોઈ કંપનીમાં આગળ કામ કર્યું હોય, તો પણ તમારે કોઈ એવું સમજવાનું કે હું 30 માર ખાશું. બરાબર. તમને નથી ખબર તો ગભરાવાની જરૂર નથી કે મને નથી આવડતું. અને આવડતું હોય તો એવું અભિમાન કરવાની જરૂર, મને બહુ આવડે. બરાબર. આવડતું હોય તો ઝીરો થઈ જાવ, મને કશું નથી આવડતું, નથી આવડતું તો હું શીખવા તૈયાર. બરાબર. તમે એ રીતે કરશો તો તમને ક્યારેય પ્રોબ્લેમ. આ બિઝનેસને 95% લોકો ફેલ એટલા માટે થાય છે કારણ કે આ બિઝનેસને વગર સમજે કરે છે. હમ હમ હમ. એમ સમજ્યા વગર બરાબર. કરે છે. હું તમને જો પોસિબલ હોય તો એક વિડીયો બતાવું છું અહીંયા, જેના હમ હમ. થકી મેં મારી જિંદગીમાં ઘણા બધા રૂપિયા બરબાદ કર્યા છે
તમારે બી કરવા જેવા ના ના નથી કરવા ને? ના. બરાબર. હવે પરફેક્ટલી ABCD પહેલેથી વસ્તુ આપણે શીખી જશું ને એ પ્રમાણે કરશું તો વાંધો નહીં આવે. તો નંબર 1 બરાબર. તમારે ડાયરીમાં લખવું તો લખી લો કે કોઈ પણ જાતની આપણે નોટ કરી લો તમે કે કોઈ પણ જાતનું આપણે ઉતાવળ નથી કરવાની. આ બરાબર બિઝનેસમાં ઉતાવળે આવા નથી પાકતા, હંમેશા યાદ રાખવાનું. બરાબર બરાબર બરાબર. પણ એનો મતલબ એ નથી કે ભાઈ હાવ ધીમે 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 કરતા રહો, પણ પેલા સમજીને કરો. સમજી લેવું. સમજ્યા વગર એમ જ ઉતાવળ ફટાફટ કરવા લાગો એવું ના કરશો એમ. બરાબર બરાબર. હું તમને એક નાનો અમથો સંદીપ મહેશ્વરીને ઓળખો છો તમે? ના. શું વાત છે, સંદીપ મહેશ્વરી તમે નહીં જાણતા હતા યાર? હે? આવે છે વિડીયોનો અવાજ તમને? હા હા આવે છે, આવે છે. આવે છે ને? હા હા હું તમારા ઓડિયોને મ્યુટ કરી દઉં છું, હા. તમે સાંભળો. एनी गेसेस कि आज क्या होने वाला है? कोई आइडिया? कोशिश करो, तुक्के मारो. हाँ, वो तो बदलेगी. मैं पूछ रहा हूं कि टॉपिक क्या है. मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है. एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है, कि मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूं. तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली आपको यहां पर करके दिखाऊंगा और फिर उसको ध्यान से देखना. उसके बाद में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा. देख लिया सबने? ओके, कुछ लोग डर गए. आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जो अभी अभी मैंने किया ये करना उनके लिए मुश्किल है? सच सच बोलो. जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना है आसान है. यहां पे सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा आसान है. जेन्युइनली जो अंदर से लग रहा है. आंटी आप तो अपना हाथ ऊपर कर लो, आप तो मेरी मम्मी की एज के हो, आप कहां करोगे ये? मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरी मम्मी ये कर रही है, बहुत अजीब हो जाएगा. तो कितने लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है? जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सारे लोगों को. ओके. कितने लोगों को लग रहा है कि ये आसान है और वो अभी इसको कर सकते हैं? यहां पर बहुत लोगों को लग रहा है. बहुत बढ़िया. अब इसमें से जितने भी लोगों को लग रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि आसान है लेकिन ट्राई नहीं किया? हाँ, लग रहा है. आप आ जाओ स्टेज पे, आपने हाथ ऊपर किया था. आ जाओ, आ जाओ. और कितने लोगों को लग रहा है? हाँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम. तो आप सबने देख लिया मैंने क्या किया था और आप लोगों को लग रहा है कि आप ये कर सकते हो. सिर्फ 2 छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है. पहला कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए. जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, क्योंकि मैंने वही पूछा था. मतलब कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए, बैक सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऐसे रहेगा. बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप वहां नीचे पहुंच रहे होगे तब हाथ आगे आएगा. तो मतलब ऐसे नहीं करना. ठीक है? क्लियर है? हाथ मतलब ऐसे नहीं गिरना, ऐसे तो कोई भी कर लेगा. हाँ, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बैक सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट आप जाओगे. और ये है पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन है कि आप लोगों के जो दांत है, एक बार हंस के दिखाएंगे? अच्छा, आप हाँ, बड़े अच्छे हैं.
आपको देख करके तो लग रहा है ब्रश भी करके आए हैं। क्या बात है। सो दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो दांत हैं आगे के 2 ये बाहर नहीं आने चाहिए। पॉसिबिलिटी है। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? क्लिनिक है किसी का? हाँ, कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? हाँ, आपका है। तो आज आप क्लिनिक में तो नहीं गए होगे, सुबह नहीं गए ना, यहाँ पर आए ना सीधा, तो आपकी बोनी होने वाली है। मिल गए आपको, 2-3 मिल गए, तैयार रहना। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आप इंटरनेट पे जा करके पढ़ेंगे तो हजारों लोगों के दांत टूट चुके हैं ट्राई करते करते, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की नाक फूटी है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे ही करना। चलिए करें। हाँ 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 बिल्कुल सर। हाथ ऐसे यहां पर टिके हुए, चिपके हुए, ये सीधा, बैक सीधी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब यहां जाओगे तब हाथ आगे आने चाहिए। ठीक है? हाँ, कम ऑन। आप करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ, हाथ सीधे ऐसे। अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा, ठीक है? आप देख लो, आराम से देख लो, लग सकती है, सीरियसली लग सकती है इसमें। हाँ, लगी तो नहीं? ये ओके? ओह ये फाइन। लग गया भैया वो है। ऐसा लग रहा है इंडिया टू नहीं फियर फैक्टर चल रहा है। हाँ ओके, ये ओके? ओके ओके, हाँ आपकी बारी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगी तो नहीं ना किसी को? थोड़ा सा लगा है, कोई नहीं, फर्स्ट एड किट है यहाँ पर। बाल बाल बच गए ये लोग, इसमें से 1-2 तो। सो यहाँ पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने 2 रास्ते देखे हैं, 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं, और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है, और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं, और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले तो वो क्या है? सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है? फेलियर है। सो सिंपल। तो ये 3 लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए, और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं, मैंने कई बार ट्राई किया, मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा, चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहां जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी जड़ क्या है? कि स्विमिंग करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया। मुश्किल की 1000 वजह उसके सामने आ गई, और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है यार इसमें क्या बड़ी बात है,
गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उससे 2-3 बॉल मिस हो गई और सामने से आपका एक गोलू मोलू सा दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा। होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है, गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है, हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया, तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी, मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा, ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए। वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं, फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उसको बात समझ आई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यस और नो, यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा, धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया, गहरे पानी में। किसने रोका है, अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है, आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? नहीं लगता, यस और नो? और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है, यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट हाँ
ક્લિયર થાય છે? અનમ્યુટ કરો, મેં તમે અનમ્યુટ નો પ્રોમ્પ્ટ, યસ, હા 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 બોલો. है ना? हम्म, संदीप महेश्वरी साहब नो आ वीडियो यदि मैंने बराबर पहले देखा होता तो मेरे 15 लाख रुपए बच जाते, बराबर क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में कम से कम 15 लाख से ज्यादा लॉस किया हुआ है। मैंने बराबर। एक बिजनेस चालू किया और चालू करने से हम्म, पहले मुझे यही लगा, अरे यार ये तो चल जाएगा बराबर। भाई, फिर गिरे, फिर एक छोड़ के दूसरा किया, दूसरा चालू किया, वापस लगा, अरे यार ये इसमें तो चल ही पड़ेगी अपना, उसमें गिरे, तीसरे चार पांच अलग अलग बिजनेस किए, हम्म, वो सब बिजनेस के अंदर में फेल हुआ। और हर टाइम बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे मन में था, ये क्या, ये तो हो जाएगा मेरे से, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे करना है, वो नहीं पता था, और उसकी वजह से मैं क्या हो गया, हर बार फेल। फेल। तो ये मैं आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए आपको पहले से दिखा रहा हूँ। चाहे दुनिया का बराबर। कोई भी बिजनेस हो, आपको लगता है आपने अभी मेरे से फोन पे बात करवाई कि भाई किसी को ज्वाइन हम्म, करना, यानी ये कैसा है, एकदम आसान है, मुझे कौन सी बड़ी तकलीफ है, हाँ हाँ गलती नंबर 1 की ओर जा रहे हैं हम लोग, अरे इसमें क्या है, इसमें ऐसा ही करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बराबर। हर चीज को सिस्टेमेटिक करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। तो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि मनीष भाई ने बताया था कि कोई भी चीज को सीख के करना है, जल्दबाजी के हम्म, अंदर नहीं करना नहीं है। उसका करना है। मतलब ये नहीं कि डर डर के बैठे रहना है, डरना भी नहीं है। बराबर। यदि मनीष भाई के पीछे ये चेक दिख रहा है आपको, 1 करोड़ का दिख रहा है, हाँ 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 दिख एक रहा है। करोड़ 1,10,221 का, तो मैंने इतना कमाया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी कमा लोगे, बराबर बराबर। उसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कमा सकते हो। देखो ये इंस्पिरेशन है, ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, हाँ हाँ। लेकिन मैंने जो इस तरह से मेहनत किया है, जिस तरह से सिस्टमेटिक काम किया है, उसी तरह आपको भी करना होगा। हम्म। क्या आपकी जॉब है वो 11 बजे स्टार्ट होती है, तो आप सोचोगे नहीं यार मैं देखो 2 बजे में आऊंगा, चलेगा क्या? अनम्यूट करो अपने आप। अनम्यूट अच्छा कंप्लीट। 2 बजे हर रोज जाओगे, चलेगा? नौकरी पे हाँ। हर रोज 2 बजे जाओगे, चलेगा? नहीं। जाने के बाद बोले नहीं मैं कस्टमर को तो इसी तरह से बात करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको जो वहां से बताया गया है, उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। हम्म। हम्म कभी कभी खाना बनाया, सब्जी वब्जी की बनाया कभी? हाँ बनाया है ना। बनाया? हाँ चलो, हाँ अरे मान लो कि मैं आपको कोई एक चीज बनाने के लिए बोलता हूँ, हाँ। आपने एक वीडियो देख लिया किसी का, और आपको बोला कि भाई आपको ये, मान लेते हैं कि आपको नहीं आता है और मैं यही रेसिपी दे रहा हूँ, हाँ या हाँ ऐसी कोई चीज जो यहाँ पे नहीं बनती, साउथ इंडिया में बनती बराबर। है ना? तो साउथ इंडिया में एक कोई चीज बनानी है जिसको बोलते हैं कोई इस टाइप की सब्जी, तो उसमें बोला ये 3-4 सब्जियां चाहिए, इतने इतना ग्राम ये लेना है, इतना ग्राम पानी लेना है, इतना ग्राम ये तेल लेना है, इतना ही मसाला, ये सब कुछ जो भी बोला था वो आपने ले आए, बराबर। बराबर। हाँ लेकिन हाँ। अभी आपको पता नहीं कैसे बनाना, हम्म। बराबर। तो नॉर्मली आपने क्या, तपेली के अंदर वो बाउल के अंदर वो सारी चीजें ले लिया, और लेने के बाद आपने वो सब्जी डाल दिया, हाँ हाँ फिर मिर्ची डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, फिर उसको थोड़ा गर्म किया, फिर और थोड़ा पानी डाल दिया, हाँ हाँ। उसके अंदर फिर वापस थोड़ा और तेल डाल दिया, फिर राई डाल दिया, फिर ये डाल दिया। अभी बोलो कैसी बनेगी सब्जी? नहीं अच्छी बनेगी। तो जो चीजें बोली थी वो सब डाली आपने, हम्म, जो लिखा था वो सब डाल दिया, ऐसा कुछ भी है नहीं लेकिन बाकी नहीं, सही तरीके से नहीं डाला इसलिए। है ना? जो स्टेप हाँ 1 था वो स्टेप 5 पे चला गया, पांचवा वाला था वो हाँ 2 पे चली गई। तो स्टेप बाय स्टेप न करने की वजह से हाँ हाँ। वो सब्जी, इंसान तो क्या कुत्तों के लिए भी खाने लायक नहीं बनी, नहीं बनेगी हाँ। है ना? यानी कि हमारा पूरा मटेरियल वेस्ट गया, वेस्ट वेस्ट पूरा गया। टाइम पूरा वेस्ट गया, वेस्ट गया। और हमारा खाना नहीं मिला अलग से। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम्म। वो तरीका नहीं सीखते हैं, और बराबर ज्यादातर लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। बोला अपने को पसंद है, जो मुझे आता है मैं इसी तरह से करूंगा, और अपने बराबर। तरीके से करने जाने की तकलीफ में लोग यहाँ पे बहुत सारा फेल हो जाते हैं। हम्म। हम्म? आप डायरी लेके बैठे, बराबर। कुछ नोट पेन कुछ लेके बैठो बाजू में, ले एक लो ना मिनट। लिखो लो। हाँ हाँ।
बोलो। नंबर वन चीज आज आपने सीखे, आज हम्म। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज सीखे, जो क्या सीखे वो जरा लिख लो उसके अंदर। क्या सीखे आज? हाँ, बोलो। सबसे नंबर वन क्या सीखे अभी तक जो बात हुई उसमें, क्या समझना पद्धति सर, पद्धति सर काम करना। है? नंबर वन, हम्म। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना हाँ हाँ। है ना? जल्दी उतावड़ में कोई काम नहीं करवाना, गुजराती में तो करવું, कहते हाँ। हैं, हाँ બરાબર? हाँ। हाँ हाँ। અને શીખીને સિસ્ટમેટિક કામ કરવાથી સફળતા મળે છે દુનિયામાં। दुनिया का कोई भी काम है वो सीख के हम्म। सिस्टमेटिक काम में काम करोगे तो डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती है। बराबर। जो सफल लोगों ने काम किया उसी तरह से हमें उसमें काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, हम्म। है ना? अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि भाई एक्चुअली ये है क्या। बराबर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। ओके, चलो। आपको मैं अभी अनम्यूट करने का राइट देता हूँ, आपको कभी भी कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपके डिस्टर्बेंस ना हो जाए। बराबर? हम हमेशा बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मनी मिलती, जितना समय हमारा बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा इनकम बढ़ेगा। तो सर ये मुकेश अंबानी और हम, या हमें से कोई भी, ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? हमारे और मुकेश अंबानी के बीच में क्या फर्क है? बता सकते हैं आप? अनम्यूट करके बताइए सर। हेलो। मुकेश अंबानी और हाँ। आपके बीच में क्या सेम है? अलग की बात नहीं करता हूँ, सेम क्या है दोनों में? सेम तो आप बॉडी सेम अच्छे। हाँ, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, बहुत सही बात है। हाँ। और क्या हम्म। क्या सेम है सर? उसके पास भी 24 घंटा, हमारे पास भी 24 घंटा है। हाँ हाँ। उसको भी खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए, उसको भी नींद चाहिए, हमें भी नींद चाहिए। वो भी हम्म। जियो यूज करता है, मैं भी जियो यूज करता हूँ। बराबर। ये सारी सेम है, हम सेम सेम है। की बात कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे उसका दिन का टाइम कितना होगा, मुकेश अंबानी के पास दिन का कितना टाइम होगा सर? पता नहीं। 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे तो है सभी के लिए। हाँ, हमारे पास भी चौबीस है। घंटे है। बराबर? हाँ। वर्किंग आवर कितने कितने घंटे काम करता होगा मुकेश अंबानी? हम्म कितने घंटे काम करता होगा मुकेश अंबानी? 18 घंटा। 18 घंटा। हाँ। और आप कितने घंटे काम करते हैं? 12। 12 घंटे। हाँ। यहाँ पे मुकेश अंबानी के पास 2,36,000 एम्प्लॉइज है, कितने हैं? 2,36,000। 2,36,000 एम्प्लॉइज है, और वो एम्प्लॉय दिन के 8 घंटा काम करते हैं। हाँ हाँ। किसका काम हुआ वो? मुकेश अठारह अंबानी। लाख 78,000 और। 18,88,000 घंटे किसके लिए काम हुआ? हाँ, मुकेश भाई के मुकेश लिए हुआ ना? अंबानी के। हाँ। इसके लिए हुआ ना? हाँ हाँ। है ना? आप अपने सेठ के लिए नौकरी करते हो तो सेठ को हम्म। वो काम नहीं करना पड़ता, तो सेठ का काम तो आपने किया ना? हाँ। है ना? क्या मुकेश अंबानी वो सारी फैक्ट्री अकेला चला सकता है? नहीं। नहीं जी, तो उसको काम करने में किसी की मदद लगती है, तो ऐसे 2,36,000 लोगों को उसने वो नौकर बना के ले लिया है। तो उसको अठारह बराबर। लाख 88,000 घंटे है, और हम 8 घंटे काम करते हैं नॉर्मली इंसान की बात। हम्म। बराबर। बराबर? अभी मंथली इनकम कितनी होगी ये भाई साहब की, मुकेश भाई की? वो पता नहीं। अंदाजा मारो। वो तो अरबों में ही होगी ना। फिर भी कितना अंदाज तो मारो, महीने की? नहीं, अंदाजा नहीं है। नहीं अंदाजा है, चलो मैं आपको नहीं। बता रहा हूँ, ये डेटा जो है ना, तो जून हाँ हाँ। 2022 के 3,975 करोड़ रुपया मंथली। मंथली। एक महीने की इनकम है करीब करीब 4,000 करोड़। हम्म। अच्छी है। हाँ। ये हम जिंदगी में नहीं कमा सकते, पता है? हाँ और हाँ। हमारी मंथली इनकम है 30,000 तीस रुपया। हजार हाँ। हम्म समझ में आ रहा है ये? हाँ बराबर? हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एम्प्लॉइज के पीछे यदि आप 3,975 करोड़ डिवाइडेड बाई 2,36,000 एम्प्लॉइज करोगे, हम्म। बराबर, तो एक इंसान जो उसने भाड़े पे रखा है नौकरी पे, वो एक हाँ हाँ। इंसान से हर महीने का 1,68,432 रुपया कमा रहा है। हम्म। 2,36,000 में से 3,09,75, तो एक पे कितना?
ये करेंगे तो 1,68,000 रुपया आएगा। यानी एक हाँ हाँ। इंसान जिनके पास से वो 1,68,000 रुपया कमाता है, हम्म। लेकिन एवरेज सैलरी, एक बंदे की एवरेज सैलरी है 67,000 रिलायंस में। एवरेज सैलरी की बात हाँ कर रहा हूँ मैं, किसी की ज्यादा हाँ होगी हाँ। किसी की कम भी होगी, कम भी होगी। लेकिन 67,000 रुपीज पर एम्प्लॉय को उसको देना है। इसका हाँ हाँ मतलब ये हो गया कि उसको एक एम्प्लॉय के पीछे, क्या आपको लगता है कि यानी 1 लाख रुपया हर एम्प्लॉय से नेट कमा रहा है वो, ये हाँ 100 हाँ। एम्प्लॉयज होंगे तो क्या इतना कमा सकता है उसमें से? ये 2,36,000 है उसके पास एम्प्लॉयज, मानो कि हाँ उसके हाँ। पास 100 एम्प्लॉयज होंगे, तो हाँ उतना हाँ। कमा सकता है वो? नहीं। नहीं कमा सकता है। हाँ हाँ। बराबर। तो इससे ये समझ में आ गया हमारे पास कि मोर एम्प्लॉयज इज इक्वल टू मोर आउटपुट। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा काम निकलेगा, हाँ हाँ। सीधी सी बात है ना, और ज्यादा काम हाँ। निकलेगा तो ज्यादा इनकम होगी। इनकम होगी। अभी आपका जो फर्नीचर का काम है, तो आप दिन हाँ। में 10 क्लाइंट को ही ये हैंडल कर सकते हो, ऐसा थोड़ा 100 क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, कर सकते हो नहीं क्या? नहीं। नहीं नहीं। तो 100 क्लाइंट के लिए 10 लोग चाहिए, 10 लोग होंगे तो 10 लाख चाहिए। ज्यादा काम निकलेगा, ज्यादा काम निकलेगा ज्यादा निकलेगा। पैसा कमाए। हाँ हाँ। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि यार यहाँ पे नौकरी के अंदर या सेठ बने हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हमारा आउटपुट ज्यादा निकलेगा, ज्यादा फैक्ट्री में से निकलेगा। उत्पादन ज्यादा होगा, तो इससे हमारी हाँ। इनकम ज्यादा होगी। बढ़ेगी। हाँ। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग हम्म। के अभी दो पार्ट हो गए, पहले एक ही पार्ट था, लेकिन अभी हम्म। उसके दो पार्ट हो दो गए, पार्ट हो साइड गए। ए और साइड बी। क्योंकि हम्म। नीचे से जमीन लिया, तो दो पार्टनर ने साथ में मिलके लिया था, पार्टनरशिप थी। हाँ हाँ। फिर उसका वो फाउंडेशन किया, वो किया, सब यहाँ तक बिल्डिंग वो दिख रही है, स्ट्रक्चर पूरा बन गया, बराबर, पूरा टावर खड़ा हम्म। हो गया, और वो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों पार्टनर के बीच में झगड़ा हो सकता है ऐसा अश्विन भाई? हाँ हाँ। हो सकता है ना? हो सकता है, हो तो सकता फिर है। उसने बोला अभी तेरे साथ मुझे काम नहीं करना हाँ हाँ। है ना? तो बोले कोई बात नहीं, तेरा हिस्सा इतना और मेरा हिस्सा इतना, अभी तू अलग और मैं अलग। बराबर। लेकिन बिल्डिंग ऑलरेडी बन गई, अभी फाइनल स्टेज ही बाकी है उसका, हाँ हाँ। समझ रहे हो, उसका प्लास्टर बाकी है और बाकी चीजें बाकी है। तो हाँ ऑलमोस्ट हाँ। खर्चा बर्चा सब कुछ फिक्स हो गया था, तो दोनों का मार्केट में रेट भी डाल दिया था, भाई 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्लैट है हमारा, 1 करोड़ रुपए बराबर। में फ्लैट हमारा बिकेगा। तो ये बंदे के हाथ में दो बिल्डिंग आई, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट उतना था, और हाँ दूसरे हाँ। बंदे के हाँ पास में एक टावर के अंदर 40 माल है, 10 फ्लोर, हाँ। और एक फ्लोर पे 4 मकान। तो एक टावर में हम्म। 40 है, तो दो टावर में कितने आ गए उसके घर के पास? घर 80 80। फ्लैट आ गए, 80 फ्लैट हाँ। आ गए। और दूसरा पार्टनर है, उसके पास 8 टावर मिले, तो 8 इंटू ये करेंगे तो आपके पास हो गया यहाँ पे 320 फ्लैट हो गया, हाँ हाँ। बराबर। अभी ये दोनों की जो कीमत है, हाँ। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कीमत है, और 20 लाख रुपया उसका मार्जिन है, एक फ्लैट के ऊपर 20 लाख रुपया उनको मार्जिन मार्जिन मिलता है। है। अभी आप मुझे बताओ, ये दोनों में से पैसा कौन ज्यादा कमाएगा? ये 320 फ्लैट वाला। 320 वाला कमाएगा पक्का? हाँ हाँ, पक्का ओके, पक्का। साइड ए या साइड बी, आप बोले साइड बी वाला ज्यादा साइड भी, कमाएगा। हाँ। हाँ। जापानीज लोग है वो समझदार है या बेवकूफ लोग होते हैं? वो समझदार है। समझदार है। तो जापानीज लोगों में एक कहवत है, नेवर एज्यूम वेरीफाई, कोई भी चीज को मान नहीं लेना है, हाँ हाँ। उसको पूछताछ करके वेरीफाई करना है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ज्यादा कमाया होगा? ये तो हमने मान लिया कि कमाया होगा, हमने माना है, हाँ हाँ। शायद उससे उल्टा भी हो सकता है। तो आपको ही बोला कि भाई आप जाके चेक करके आओ, सही में हम्म। जांच पड़ताल करके आओ, हाँ हाँ। सही में ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया, आप जान कर बताओ कि भाई कितना ज्यादा कमाया, वो कमाया तो कितना हम्म। कमाया। आप जब हाँ पूछने गए, तब आपको पता चला यहाँ पे, क्योंकि उसको बोला कि भाई आपका कितना बिक गया माल, कितने फ्लैट बिक गए, तो बोला 80 के 80 मेरे फ्लैट है, वो बिक बिक गए। गए। हाँ। और आपने साइड बी वाले को पूछा कि भाई तेरे कितने बिके, तो बोला मेरे के 20 फ्लैट बिके, हाँ। मेरे 20 फ्लैट 20 बिके। फ्लैट। हम्म। अभी आप बोलो कि कौन ज्यादा कमाया होगा? अभी तो यही कमाया। बी वाला। साइड ही। तो पहले तो हाँ। आप बोल रहे थे बी वाला ज्यादा कमाया होगा, हाँ, लेकिन वो सारा बिक गया ना, इसलिए। है ना? तो हाँ। उससे ये चीज हमें समझ में आती है, सेल्स इज इक्वल टू इनकम, बराबर। है ना? जितना बिकता है हम्म। उतनी इनकम होती है, कितना पड़ा है हाँ ना। आप बोले यार मेरे गोडाउन के अंदर है ना 500 क्विंटल गेहूं पड़े हैं, तो 500 हाँ। हाँ, क्विंटल गेहूं पड़ने से तुम पैसे वाले नहीं बन जाओगे भाई। नहीं बनेंगे, हाँ। 500 क्विंटल गेहूं बिकने के बाद तुम पैसे तुम्हारे पास आते हैं, हम्म। है ना? हाँ हाँ।
तुम बोले मेरे पास यार है ना 10 इनोवा कार पड़ी है, 10 इनोवा कार पड़ी जो वर्दी में जाती है मार्केट में, हाँ 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 और एक बंदे के पास एक ही इनोवा है, हाँ। लेकिन वो 10 घर पे पड़ी और एक ही वो मार्केट में फर रही है, तो कौन पैसा कमाएगा? मार्केट में इनोवा, कौन? एक इनोवा, हाँ, हाँ, मार्केट तो में जो घूम इसका रहा है वो। मतलब होता है कि आप सेल्स कितना बिजनेस लेके आते हो वो इम्पोर्टेंट है। कितनी बड़ी दुकान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना नहीं सेल है। होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉक इज हम्म, नॉट इक्वल टू इनकम। आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है ना वो इनकम नहीं है, हाँ हाँ आपने हाँ हाँ। कितना बेचा वो आपकी वो इनकम है। एक, हाँ। ये पता चला सर? ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। हम्म। कुछ नई चीजें क्लियर हो रही है सर आपको? आपने हाँ शायद बहुत हाँ सारे लोगों से बातें की होगी, आज ने मैं आपके दिमाग के कुछ और चीजें क्लियर करने का प्रयत्न किया है। हाँ तो हाँ हाँ एक बात आप अपनी डायरी में लिख लो, सेल्स इज हाँ इक्वल टू इनकम। हाँ। जितना सेल्स ज्यादा होगा उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, वो बात तो सही है हाँ ना? मुझे हाँ मेरी हाँ। इनकम को बढ़ानी है तो मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना होगा। चाहे आप जहाँ जॉब बराबर। कर रहे हो वो मालिक को बोल रहे हो, जैसा सेल्स बढ़ेगा तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं हम्म। देखेगा वो कितने साल से कर रहा है, उसके पास कितना अनुभव है, उसके पास कितना आदमी है, वो सब मैटर नहीं करता है सर। हाँ हाँ वो हाँ। सब होने के बावजूद करना क्या पड़ता है? सेल करना पड़ता है। सेल करना पड़ता कितना है। सेल किया उसके हिसाब से तुम्हें मिलता है। ये तो आपको भी बराबर। पता है, आप इंश्योरेंस सेल में भी काम कर रहे हो, तो आपको भी पता हाँ है आप कितने बड़े नॉलेजेबल हो वो मैटर नहीं करता है। हाँ हाँ आप कितना अच्छा समझाते हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप हाँ हाँ कितना सेल्स लेके आते हो वो ज्यादा हाँ। मैटर करता है। बराबर। तो दुनिया में हर बंदा है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? एक्सपांशन सेल्स करता है। एक्सपांशन करता एक्सपेंशन। है। अभी हाँ मान लो हाँ कि कोई भी थोड़ा बहुत काम चल गया तो वो क्या करेगा? मैं एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि हम्म। कोई लेडीज है, वो अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है, तो उसने क्या हाँ किया है? हाँ अपना एक छोटा सा व्यवसाय स्टार्ट किया घर से। हाँ बहुत हाँ। कॉमन है, हर एक लोग कर सकते हैं ये सब, कोई बड़ी बात है क्या ये? नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी ये करते हैं उसका हाँ। घर से अच्छा चलने लगा। क्या होने लगा? अच्छा चलने अच्छा लगा। चलता है, कस्टमर ज्यादा आते हैं और पहुंच नहीं पाती है, तो हम्म। क्या करेगी वो लेडी अभी? ज्यादा लोग करेंगे। तो उसने क्या किया? हाँ यहाँ पे एक दूसरी और कुर्सी लगा दिया, हाँ। और एक लेडीज को उसने वहां पे स्टाफ पे ले लिया कि भाई तू आ ले जा, तेरे को मैं इतना लिया। सैलरी दूँ। ऐसा ही करते। हाँ। तो ये क्या हुआ? बिजनेस का एक्सपांशन, बिजनेस का एक्सपेंशन। વધારો કર્યો, हाँ मोटो हाँ। करो, है ना? ऐसा गुजराती में बराबर। बोलते, बिजनेस को यहाँ पे उन्होंने बढ़ाया। हाँ हाँ। फिर और भी उसको अच्छा चलता है तो वो क्या करती है, बोला यहाँ पे अभी और नहीं पहुंच पाते, घर में सब डिस्टर्बेंस होता है, तो और भी उसको कम पड़ता है, तो वो एक बहुत दुकान बड़ी लेती है, वहां पे चार पांच बराबर। और वो रख के एक अच्छा प्रोफेशनल सलून बनाती है। हाँ हाँ करते कि नहीं करते बाद में ऐसा लोग? हाँ। करते हैं करते हैं। है ना? तो फिर उसमें और उसको ज्यादा फायदा हो गया, और वहां से भी हम्म। उसको और अच्छा होता है, तो वो अलग अलग अपने और ब्रांचेस खोलती है। हाँ हाँ जैसे आप जहाँ पे काम करते हो वो क्या एक फ्रेंचाइजी है ना? हाँ हाँ तो ये इसने लैक्मे का सलून या इसका ऐसा एक सलून खोल लिया, तो आपके सलून से कमाओगे, दूसरे और सलून से कमाओगे। हाँ। तो ये क्या किया, धीरे धीरे घर से चालू किया, फिर दो किए, फिर एक दुकान खोली, फिर मल्टीपल दुकान खोली, तो उसने क्या किया? अपना बिजनेस को एक्सपांड किया। तो आप एक्सपांड मुझे किए। बताओ, एक्सपांड करके ज्यादा कमा सकता है, बिना एक्सपेंड करके ज्यादा कमा सकता है? पॉसिबिलिटी किस पे ज्यादा है? एक्सपांड एक्सपांड करके। करेंगे, सीधी सी बात है। हाँ यदि हाँ धंधा हाँ। चल रहा है तो एक्सपांड करके ही इंसान कमा सकता है। नहीं हम्म। चल रहा है तो गलत बात है, लेकिन चलता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास 10 दुकान है, दसों हाँ दस हाँ दुकान अच्छी चलती है, तो आप 10 में ही ज्यादा कमाओगे एक की जगह। हाँ हाँ। तो हमें क्या करना है सर? हमें बिजनेस को, एक्सपांड। हमें हमारा सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। लिख लो, करना पड़ेगा। हाँ 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 सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें करना होगा, हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, हाँ विस्तृत हाँ विस्तरण करना होगा, फैलाना हाँ हाँ। होगा। फैलाना लिख लो होगा। अपनी डायरी में, यदि हमें बिजनेस में सेल्स बढ़ाना है तो हमें करना हाँ होगा हमारे बिजनेस का एक्सपांशन, यानी बड़ा करना, फैलाना पड़ेगा। बापू नगर एरिया से नरोडा में जाना पड़ेगा, बापू नगर हाँ से हमें विराटनगर जाना पड़ेगा, बापू नगर से सारंगपुर है वहां पर जाना पड़ेगा, कालूपुर में जाना पड़ेगा, अहमदाबाद को छोड़ के फिर हमें कलोल में जाना पड़ेगा, हमें धौलेरा साइड जाना पड़ेगा, हमें बड़ौदा साइड जाना पड़ेगा, वहां से हाँ हटके हाँ हमें महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, हमें
राजस्थान में जाना पड़ेगा, वहां दिल्ली तक जाना पड़ेगा, फिर कर्नाटक जाना पड़ेगा, वहां से विदेश तक। तो वो क्या हो गया, हमारा बिजनेस का एक्सपांजन, बड़ा बड़ा एक्सपेंशन जितना हम एक्सपांजन करेंगे उतना हमारा सक्सेस यहाँ पे होगा। होगा। हाँ बराबर। एक सिंपल हाँ कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि आपका ये महीना है और आपके लिए सब कुछ सेम है। आपके लिए और मेरे लिए सेम क्या क्या चीजें हैं? एक चीज सेम है, डिस्काउंट। आपके और मेरे हाँ लिए डिस्काउंट सेम है। हाँ जो कीमत में आज आपने चीजें खरीदी वही कीमत में मुझे खरीदनी होती है। बराबर। यानी हर एक के लिए डिस्काउंट क्या है, सेम है, कोई सेम है। फर्क नहीं। बराबर। हम्म यानी ऐसा नहीं कि मेरे से खरीदोगे तो कम में मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ दूसरा बात, अभी वो कितने में मिलेगी उसके लिए आपको कभी मुझे फोन नहीं करना है। हाँ हाँ उसके लिए आपको वेस्टेज की एप्लीकेशन है, उसमें सारी चीजें बताई गई है। हाँ हाँ बराबर। बराबर। आप एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा टूथपेस्ट का कितना एमआरपी है, कितने में पड़ती है। हाँ साबुन की हाँ कितनी एमआरपी, कितने में पड़ती है, पता चलता ही नहीं चलता वहां पे। हाँ चलता है चलता तो है। कितना डिस्काउंट है उसके लिए कभी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं नहीं है। है। हाँ। दूसरी बात है, 8 to 10% फ्री प्रोडक्ट, 8 से 10 टका प्रोडक्ट फ्री मिलती है। हाँ ये भी आपको कहाँ देखना है, आपकी एप्लीकेशन है, वो हाँ हाँ एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट परचेज ऑफर होती है। जो हाँ पहली हाँ बार के लिए, जब पहला बिल बनता है तब ऑफर मिलती है, जो आपने हाँ नहीं हाँ लिया है। और दूसरा होता है, वो भी आपको एप्लीकेशन में मिलता है। और तीसरा होता है दोस्तों, कंसिस्टेंसी ऑफर। हाँ हाँ बराबर। यानी फर्स्ट इनवॉइस या रीपरचेज, पहली प्रोडक्ट बराबर। खरीदो या दूसरी बार खरीदो, आपको आपको कुछ फ्री मिला, हाँ टूथपेस्ट मिला अभी। टूथपेस्ट फ्री मिला ना। तो अभी हाँ टूथपेस्ट फ्री है कि नहीं है, क्या फ्री में है, वो किसको पूछेंगे, एप्लीकेशन में देखेंगे। एप्लीकेशन में देखेंगे। हाँ बराबर। एप्लीकेशन में सब कुछ है। नहीं पता चलता हाँ तो अपलाइन को पूछ लेने का, सर कहाँ देखना है, एक बार दिखा दो, फिर कोई मगजमारी नहीं। बराबर। तो ये ओके। सबके लिए सेम है। मैं भी इतने का सामान खरीदता तो मुझे भी यही फ्री मिलता है। हाँ सबके लिए सेम है। तीसरी सेम बात है। है सर, आपको कंसिस्टेंसी ऑफर, सीएनसी हम्म, ऑफर। हाँ यानी हाँ कि आपको 4 महीने की खरीदी के बाद 5वें महीने में 2500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। हाँ यानी हाँ महीने का 625 रुपये का सामान आपको फ्री हो गया। हम्म, 4 महीने का 2500 रुपया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो 5वें महीने 2500 का फ्री मिलेगा। तो 2500 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 625 रुपये का सामान आपको फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। बराबर। ये भी सबके लिए सेम है, कोई हाँ अलग हाँ नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 100 पीवी करने होंगे लगातार 4 महीने तक। कितने महीने तक, 4 महीने तक। 4 महीने तक लगातार करेंगे। कितने के बीच में करना है, 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। 12 तारीख के बीच में। 2 से 12 के बीच में आप 100 पीवी करते हो, तो हाँ आपको यहाँ पे 5वें महीने में 2500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। लेना हाँ चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर, लेना चाहिए। लेना चाहिए। बराबर। आप हाँ यदि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आपका जो 100 पीवी का सामान है, अभी आपने खरीदा तो 34 पीवी हुए आपके, 34 पीवी हुए, हाँ 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 तो उससे 3 गुना होगा। 3 गुना। 34 × 3 करेंगे तो 102 हो जाएंगे। हाँ यानी करीब करीब 3300 3400 रुपये का सामान आप खरीद लेंगे तो आपके 100 पीवी हाँ हो जाएंगे। तो हाँ 3300 हाँ रुपये का सामान खरीदेंगे तो सामने फायदा होता है 625 रुपये का। 25 रुपए का। 625 कितने का, 625। तो कितना परसेंट होता होगा सर, 3300 के सामने 625, तो कितना परसेंटेज होगा अंदाजे आपके हिसाब से। 30%। नहीं, 3300 में 600, करीब करीब 19-20%। हाँ 19 तेतरीस 20 हो गया। हाँ 3300 ना गुण્યા 20 ટકા करो ले 600 रुपये થાય, हाँ छह सौ हाँ हाँ। साठ बराबर। तो छह ओके। सौ साठ हाँ तो हाँ नहीं लेकिन थोड़ा कम है। तो हाँ 18 से 19% आपको मिलता है। तो मिलता है। आपको हाँ 18 से 19% बेनिफिट से कम लगता है या ज्यादा लगता है, अच्छा है कि ज्यादा बुरा है। है, हाँ अच्छा है अच्छा है। उसको छोड़ना चाहिए या लेना चाहिए। लेना चाहिए। बराबर। तो हम हमें हम्म, हर एक लोगों को सिखाते हैं कि भाई साहब ये बिजनेस है, तो हमें बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहिए, हाँ लॉस हाँ मेकिंग बिजनेस नहीं नहीं करना करना चाहिए। है। तो आपको 2 से 12 के बीच में 100 पीवी कर लेंगे तो आपको फायदा हो। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कितना कितना फायदा है वो। लेकिन हाँ हम हाँ लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि सर आपने, आपका ये पहला महीना है, कौन सा महीना है, हाँ हाँ पहला पहला। महीना। और हाँ आपने खरीदी की है 3500 का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। हाँ 3500 हाँ का सामान आपने खरीदा, तो ये हो खरीदा। गया हाँ आपका। आपके पास काम करने के लिए कितने लोग हैं अभी, आज की डेट में आपके पास कौन है काम करने के लिए, अकेला ही हूँ मैं अभी तो। अकेला हो तो आप हाँ अकेले हो सेल्फ फोर्स। और आपके पार्टनर कितने हैं, 0। 0। दिखता है आपको स्क्रीन पे सारी चीजें, हाँ हाँ बराबर।
तो हाँ सर हाँ। आपके जो पीवी है वो पीवी कितने बने? सेल्फ के पीवी है 100 बने, 100। क्योंकि आपने 3500 का सामान लिया, आपको 100 पीवी हाँ हो हाँ। गए। और हाँ हाँ। पार्टनर जीरो है, तो 0 × 100 यानी कि 0 पीवी। हाँ पार्टनर के हाँ। पीवी 0 है, आपने किसी को अभी 0 आपके साथ जोड़ा नहीं है। नहीं है। अभी 8 से 10% की ऑफर जो आपने अभी लेके आए हैं, हाँ हाँ। बराबर। आपने एक सामान लिया तो आपको 80 रुपये के टूथपेस्ट फ्री मिला, हाँ हाँ। बराबर। ऐसा 3 लेते तो 8×3 = 2400, 240 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। फ्री तो मिलता है। ये आपको इतना लिया इसलिए, बाकी आपको 4 पेस्ट फ्री मिल जाती। आपने यहाँ पे 3500 का लिखा होता ना, हाँ हाँ। तो 4 पेस्ट फ्री मिलते। 4 पेस्ट के ऊपर 8 × 80 रुपये × 4, कितने रुपए का सामान फ्री हो गया सर? 400 के 80, आसपास। आठ चौक 300, 32, तीन सौ 360 बीस के आसपास। तीन सौ हाँ। बीस तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आपको 300 रुपये के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते, फ्री मिलता है। बराबर। आपने 300 रुपये और 625 रुपये का फायदा आपको यहाँ से मिलता है। हाँ 5वें महीने हाँ। में 625 ही हो गया। तो ये आपको क्या मिला? सारा का सारा फ्री मिला। फ्री तो मिला। अभी यहाँ पे हम देखते हैं आपकी इनकम कितनी होगी। अभी आप कुछ भी नहीं किया है, आपने हाँ हाँ। 3500 का खरीदी किया है, तो पूरे महीने में आपकी इनकम होगी 5% के हिसाब से 90 रुपया। कितनी होगी? हाँ। 90 रुपये। 90 रुपया। और आपके पार्टनर में से भी आपको इनकम मिल सकती है, लेकिन आपने कोई भी पार्टनर अपना यहाँ पे बनाया नहीं नहीं है। बनाया। हाँ। तो कुल मिला के आपका फायदा यहाँ पे हो गया, आप देखो, 625 प्लस 300 यानी 925, और 90 रुपया यानी 1050 रुपये का आपको फायदा हो गया। हम्म। कितने का फायदा हो गया? 1015 रुपये का। हाँ, और सामान कितने का लिया था? 3500 का। 3500 का। हाँ। 3500 के सामने आपको 1000 का फायदा हो गया। यानी जो हम्म। पैसा आपने कंपनी को पे किया है, उसमें से हाँ हाँ। 30% का बेनिफिट आपको हो गया, 30% का। हम्म। और आपको उसके सामने यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया 10 से 15%, वो अलग से, हाँ हाँ। बराबर। तो आपको 30% का बेनिफिट मिला, और 10 से 15% डिस्काउंट, यानी 40 से 45% का फायदा आपको हो हो गया। गया। हाँ इन हाँ। शॉर्ट, आपके पास कोई भी इंसान जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, आपको 40 से 45% का बेनिफिट होता है। हाँ हाँ। ये समझ में आया? हाँ हाँ। बराबर। अभी क्या करेंगे सर? अभी आपको समझ में आ गया कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, हाँ हाँ। आपने यूज किया तभी तो पता चलेगा अच्छा लगा। हाँ। बिना यूज किए बहुत जल्दबाजी में हमें कुछ भी नहीं करना है, बराबर। फिर मान लो ठीक कि है। हमने 2-3 महीना काम किया, 2 से 4 महीने, आने वाले 3 महीने तक काम किया। हाँ हाँ। तो आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि मुझे मेरा 3500 रुपये का सामान खरीदना है। अभी कोई बहुत हाँ बड़ा हाँ। टारगेट है? मुझे बताओ, बड़ा टारगेट है ये? नहीं, बड़ा नहीं है ये तो। बड़ा नहीं, तो ये आप कर सकते हो? हाँ हाँ, कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना ही करना है। ये हाँ हाँ। हमें, यदि हमें यहाँ से कमाना है, तो इतना तो हम्म। हमारा धर्म बनता है, ये हमारी फर्ज में आता है, बड़ा। इतना करना ही करना है। यानी उसके हाँ लिए हाँ। आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। अभी आपके पास, आप खुद एक हो, और 3 महीने में आपने 10 लोगों के और पार्टनर बना दिए। आपके एक्टिव पार्टनर कितने हो गए? 10। 10 एक्टिव, यानी कि काम करने वाले। हाँ हाँ। हो सकते हैं आपके पास 50 लोगों की फौज हो, हाँ हाँ। लेकिन हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? एक्टिव पार्टनर। हाँ हाँ। काम करने वाले पार्टनर है आपके काम 10 हो गए। करने वाले। हाँ हाँ। अभी ये लोगों को भी क्या सिखाएंगे हम? 100 पीवी करना। भाई हम्म। तुझे भी अपने घर के लिए 3500 का सामान जिस तरह से मैं लेता हूँ, ऐसा तुम्हें भी लेना है, बराबर। ये दस हाँ लोगों हाँ। ने 100 पीवी किए, 10 × 100 यानी 1000 पीवी हो गए आपके। हाँ यानी आपका बिजनेस थोड़ा एक्सपांस हो गया, बड़ा फैल हाँ। गया। हाँ हाँ। तो सर 300 रुपये के प्रोडक्ट्स अभी भी आपको फ्री मिलेंगे। 325 रुपये का सामान महीने के हिसाब से 5वें महीने में मिलेगा। और आपका लेवल यहाँ पे हो गया 8%, यानी आपको खुद की खरीदी से 144 रुपये मिलेंगे। हाँ हाँ। पहले कितने मिलते थे? पहले मैंने 90 रुपये। 90, 90 की जगह अभी कितना मिल रहा है? 144। 144। क्यों? हाँ। क्योंकि पहले आप 5% पे थे, अभी आप 8% आठ पे हो गए। परसेंट पे। हाँ हाँ। क्योंकि आपका जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी आपका लेवल प्लस करती जाएगी, हम्म। बराबर। ये तो आपकी बराबर। मेहनत की इनकम है। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोलती है, जो पार्टनरों ने काम किया 1000 पीवी, हाँ वहां हाँ। से करीब करीब आपको 1000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 रुपये। 1000 रुपया। यानी 1000 रुपया ये और ये वाला, तो कुल मिला के आपको फायदा हो गया 2000। 2000। पहले से ज्यादा है। हाँ। अभी आपने खरीदी कितना किया ये महीने में? 3500 की। और फायदा कितने का हो गया? 2000 का। 2000। तो यानी करीब करीब 55-60% का बेनिफिट हो गया आपको। हो गया। हाँ।
तो अभी बिजनेस को और एक्सपांड करना है या वहीं रहना है? नहीं, एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है। तो हमने 5 से 10 महीने में हमारे बिजनेस को हम हमारे एक ही काम करना है भाई, 3500 रुपये का सामान मुझे यहाँ पे लेना है। हाँ हाँ आप खुद हो और आपके पार्टनर हो गए अभी 100। हाँ ये जो 10 पार्टनर है उसको भी आपने सिखाया कि भाई तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ तो 10 महीने में आपके पार्टनर हो गए 100। और ये 100 लोगों को भी 100, आपने खुद 100 पीवी किए है, लेकिन ये 100 हम्म, लोगों ने भी 100 पीवी किए। तो आपका हो गया यहाँ पे 10,000 पीवी। हाँ हाँ 10,000 पीवी यानी कि रुपये में देखे तो 3.5 लाख रुपए का धंधा हो गया। कितने का हो गया? 3.5 लाख। 3.5 लाख का। तो आपको फायदा हो गया 300 रुपए का, और 625 जो पहले भी मिलता था आज भी मिलेगा। हाँ और आप यहाँ पे पहुंच गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, जो एक अच्छा लेवल होता है। और हाँ वहां से हाँ आपको मिलेगी 300 रुपया इनकम खुद की खरीदी के ऊपर से। हाँ हाँ यानी आपने जो खरीदा है उसमें से 300 रुपया मिलेगा, और आपके हम्म, पार्टनर ने जो काम किया है उसमें से आपको मिलेगा 10,000। 10,000। हाँ खुद की मेहनत से 300, और हमारी टीम की मेहनत से 10,000। हाँ हाँ तो यहाँ पे आपकी इनकम हो गई टोटल 11,000। 11,000। खरीदी कितने का किया? 3500 का। तो फायदा कितने का हो गया? 11,000 का। यानी कि आपकी खरीदी हो गई वो मुफ्त में। 3500 का हम्म, 3500 बात कर लो, फिर भी आपको हाँ 7,500 रुपया दूसरा मिला। हम्म, आपका पैसा तो निकल गया, आपका सामान क्या हो गया निकल अभी? गया। फ्री हो जीरो। गया। फ्री और हो उसके गया। अलावा पैसा लेके आया। क्या ऐसा हाँ कहीं हाँ। पॉसिबल है कोई धंधे में, आपके नहीं बिजनेस में पॉसिबल है कि भाई आपने नहीं 1 लाख नहीं का टर्न ओवर किया और 1 लाख से ऊपर कमाए? नहीं नहीं हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे नहीं ये हो सकता। पॉसिबल है। ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है। अभी और थोड़ा हम्म। देख लेते हैं हम, 11 महीने से 24 महीने, यानी हाँ दो हाँ। साल के अंदर हमें और आगे भी क्या काम करना है सर? हमें वही काम लगातार करना है, 3500 का सामान एक्सपेंशन। खरीदना है। हाँ हाँ हाँ। बराबर। अभी हमने हमारे लोग 1,000 लोग एक्टिव कर लिए। क्या कर लिए? एक्टिव एक्टिव। कर लिए। और वो लोग भी 100 पीवी करते हैं। तो हमारे हो गए सर यहाँ पे 1 लाख पीवी। हम्म। तो 1 लाख पीवी हो गए तो 35 लाख का टर्नओवर हो गया। क्या आपके हाँ हाँ। अकेले से हो सकता है इतना? नहीं। मैं ऐसा बोलूँ आप 35 लाख का सामान ले लो और घर घर हाँ जाके हाँ। बेच पाओगे? नहीं नहीं नहीं। पूरा सुबह से रात तक दौड़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हम्म? और मैं इतना टर्नओवर हर महीने ऐसे ही कर देता हूँ। हाँ हाँ मेरा इतना टर्नओवर हर महीने ऐसे ही चुटकी में, मैं सो जाऊँ तो भी हो जाता है। क्यों? हाँ हाँ क्योंकि मेरे पास पार्टनर्स है। बराबर। ये दोनों से मिलता है, यहाँ पे आपका लेवल बन जाता है क्राउन। हाँ यानी हाँ। आपको अपनी खरीदी से 600 रुपया मिलता है। कितना हम्म। मिलता है? 600 600। रुपये। लेकिन आपकी जो टीम है, आपके जो पार्टनर है, वहां से मिलते हैं आपको 1 लाख रुपया। 1 लाख। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई यहाँ पे? 1,01,000। 1,01,000। तो हाँ। आपने कितने का खरीदी किया 3500 का। और मिला कितना? एक एक लाख लाख एक हजार क्या हाँ। ये और कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। और कहीं पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये यही पॉसिबल है। यही पॉसिबल है। हम्म। तो हम्म। इसका मतलब ये होता है कि मोर ट्रेन पार्टनर, आपके ज्यादा ट्रेन पार्टनर होंगे जिनको आता होगा। हाँ खाली हाँ पार्टनर का कोई मतलब नहीं, जिनको कुछ नहीं आता है वो आपको ही परेशान करते रहेंगे। तो हाँ मोर हाँ ट्रेन पार्टनर इज इक्वल टू मोर पीवी। हाँ हाँ तो ज्यादा पीवी करेंगे और मोर पीवी इज इक्वल टू मोर इनकम। तो हमें हमारी टीम तो बढ़ानी है, लेकिन उसको क्या करना है? ट्रेन करना है, ट्रेन उसको करना है। सिखाना है। यदि हम हाँ उसको हाँ। नहीं सिखाएंगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है सर, जॉब वर्सेस हाँ बिजनेस। हाँ यदि हाँ आपकी उम्र 25 साल है, तो हाँ। आज नहीं तो कल 60 साल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। है ना? तो सर हाँ आप यहाँ 25 साल की उम्र में आपका नौकरी है या व्यवसाय है, उसके अंदर हाँ टाइम हाँ देते हो तो पैसा मिलेगा। हाँ। बराबर। ये पूरा महीना काम किया तो पूरे महीने का सैलरी मिलेगा। दूसरे मिल महीने में गया, पूरा हाँ। महीना काम किया तो दूसरे महीने का सैलरी मिलेगा। लेकिन तीसरे महीने में हम्म। गए ही नहीं नौकरी, तो क्या इनकम मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। यानी कि कुछ आप नहीं। समय दोगे तो पैसा मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें कंपलसरी उठ के वहां पे जाना पड़ता है। सिर्फ जाना आप पड़ता टाइम है। दोगे तो पैसा मिलेगा, फिर टाइम नहीं हाँ। दोगे तो पैसा नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। सही बात है सर आपके साथ ये? सही है, सही है। है ना? तो हाँ आपको हाँ हमें ये चीज समझ में आ गई। वो पहले वाले का एक चीज हमें लिखना बाकी रह गया है। ये चीज आप पहले वाला जो था ना वो थोड़ा लिख लीजिए उसके अंदर, ये हाँ। मोर ट्रेन पार्टनर, ज्यादा सीखे हुए पार्टनर हम्म। इज इक्वल टू ज्यादा पीवी मोर पीवी हम्म। इज इक्वल टू मोर इनकम।
तो हमारा लक्ष्य कहाँ पे रहेगा सर अभी? हमारा लक्ष्य यहाँ पे रहेगा मोर हाँ ट्रेन पार्टनर। पार्टनर, हाँ जितने हमारे पार्टनर है वो ट्रेंड रहेंगे, समझिएंगे, उतना ही हाँ हाँ, हमारा फायदा है। ज्यादा होगा हाँ। और यहाँ पे हम क्या सीखे? समय देंगे तब तो तक पैसा पैसा आएगा, मिलेगा, समय नहीं देंगे तब पैसा नहीं नहीं आएगा। मिलेगा। तो लिख लो, हाँ समय देंगे तो पैसा आएगा, समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। ओके। बराबर। हम्म। मानो कि सर ये हमारे देश में, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं हाँ हाँ। एक एक दो दो महीने के लिए। हम्म। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ। हमारे साथ ऐसा होगा तो पगार कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। बराबर। हाँ यानी कि हाँ हमें हाँ, पैसे कमाने हैं तो तब तक हमको वो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वो कॉल के बेल की तरह हमें काम करना पड़ेगा, हाँ है ना। लेकिन सर हाँ यहाँ पे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो चार्ट है हाँ उसमें टाइम वर्सेस इनकम। आपने हाँ शुरुआत हाँ के 6 महीने में काम किया तो उस आपने बहुत मेहनत किया, इनकम बहुत कमाई है आपने। हाँ हाँ जो लाइट ब्लू वाला है वो मेहनत वाला टाइम वाला काम है, और जो डार्क ब्लू वाला है वो इनकम है। बहुत हाँ मेहनत हाँ किया सर 6 महीने में, हर रोज 2 3 3 3 4 4 घंटा मैंने काम किया, थोड़ा सा पैसा आया। हाँ बराबर। लेकिन हाँ लगातार आप फिर भी करते रहो, क्योंकि शुरू शुरू में आपको कुछ पता नहीं है, आप गलतियां पे गलतियां कर रहे हो, क्योंकि हाँ, नए नए इंसान तो गलती करेगा। करेगा हाँ। धीरे धीरे आपको थोड़ा और आ गया, आपने 80% काम किया, आपको 20% पैसा मिला। हाँ फिर भी आपने ये काम को करते रहे 12 महीने तक, तो ऐसा हो गया हाँ कि फिर थोड़ा और फायदा हो गया। काम उतना ही कर रहे हो, 30 40% मिल रहा है। फिर हाँ और हाँ, थोड़ा काम करोगे तो मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आपको इनकम मिलने लगेगी। मिलेगी। हाँ फिर हाँ 24 महीना किया, फिर 36 महीना, फिर 36 महीना, फिर 3 साल के बाद ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो 20%, आपको हाँ फायदा हाँ होता है 80%। फिर आपको हाँ सिर्फ हाँ। सुपरविजन का काम करना है, अपनी टीम को थोड़ा गाइड करने का ही काम करना है। तो हम्म। आपके पास दो मॉडल है सर, पहला वाला जॉब या बिजनेस वाला, जिसमें हाँ जब हाँ। तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, काम बंद हम्म। पैसा बंद। दूसरे वाले में है, वो शुरुआत में मेहनत ज्यादा है, हाँ इनकम कम, हाँ लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत कम होगी, इनकम ज्यादा। हाँ हाँ। आप मुझे बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग वाला। पहले वाले में अच्छा हाँ ये है कि आपको तुरंत मिल जाता है, पहले दिन से फुल हाँ पेमेंट मिलता है। यहाँ पहले दिन से फुल हाँ नहीं मिलता है, हाँ हाँ, 20% मिलता है, लेकिन फिर भी आगे जाके उसमें फायदा ज्यादा है। ज्यादा है। तो हम ट्रेडिशनल में मेहनत करेंगे, जब तक टाइम देंगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग के अंदर आप लिख लो अपनी डायरी के अंदर, नेटवर्क हाँ हाँ मार्केटिंग में शुरू शुरू में कम आएगा, लेकिन जैसा सीख के अच्छी तरह से करेंगे तो 3 साल के अंदर हम बहुत कम मेहनत करेंगे तो भी बहुत ज्यादा पैसा आएगा। हम्म। यानी अभी पैसा थोड़े थोड़े से शुरुआत होगी, लेकिन आगे जाके हमारे न करने के बाद भी ज्यादा इनकम आएगी। ओके। बराबर, ये क्लियर हो रहा है? हाँ बराबर। हाँ तो एक बात, शायद आपको भी लगा कि थोड़े प्रोडक्ट महंगे हैं, लगे आपको हमारे प्रोडक्ट थोड़े महंगे? हाँ, महंगे लगे। बराबर ना, तो ये बात तो हाँ हाँ। सही है। हम्म। क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या है, महंगे हैं, लेकिन इतने भी महंगे कि हम नहीं खरीद सकते। नहीं, इतने महंगे नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत तो मार्केट से महंगे। महंगे कितने हैं हो गए हाँ। सर, 10 15 20% कितने महंगे हैं हमारे प्रोडक्ट? 20% जितना होगा। 20% जितना महंगा है, तो मैं भी वो बात को हाँ एग्री करता हूँ। और जब मैंने हाँ पहली बार ये देखा तो मुझे भी ये लगा था कि प्रोडक्ट हाँ हाँ थोड़े महंगे, ऐसा नहीं कि बहुत महंगे, लेकिन थोड़ा हाँ महंगा हाँ, तो है। मान लो महंगा कि है। मार्केट में 100 रुपये का एप्पल मिल रहा है, तो हमारा एक सौ हाँ बीस रुपये का है, ऐसा ही है हाँ ना। हाँ, तो ऐसा ही है। महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं खर्च कर सकते। हाँ हाँ। तो ये सवाल मुझे भी लगा था कि यार ये तो मेरे पैसे पे ही कंपनी पैसा दे रही है मेरे को। हम्म। सो सर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके मार्केट के ब्रांड और यहाँ पे हमारा ब्रांड, वेस्टेज का ब्रांड, हाँ बराबर। तो मार्केट हाँ में जो हाँ टूथपेस्ट लाते हो तो 55 रुपए की आती है ऑन एवरेज आज की डेट में। हाँ हाँ, आती कि नहीं आती, आप देख लो, कॉलगेट आती होगी, है। पेप्सोडेंट होगी, तो 55 रुपए की आती है। हमारी आती है वाली हाँ। वेस्टेज आती है 67 रुपीज में, यानी कि हम्म। 12 रुपया आपने वेस्टेज को ज्यादा प्लस दिया। दिए। हाँ हाँ। सॉप लिया तो सॉप 70 रुपये 35 रुपये का मार्केट में एक मिलता है, दो साबुन लिया 70 रुपया, यहाँ हमारा हाँ, 45 रुपये का दो है तो 90 रुपये लगेगा। 90 सेम उसी लगेगा। तरह शैम्पू मार्केट में आता है 120 रुपये का, यहाँ पे 163 रुपये का। तो ऐसे आप हाँ ऐड करते जाओगे, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ लेकिन ऐसा होगा सर कि मार्केट से जो आप सामान लेके आते हैं
तो हाँ 2775 रुपये में हो जाता है, और हाँ वेस्टेज से लेके आए तो 3384 रुपया हो गया। हाँ यानी कि वहां से कम 20% से थोड़ा ऊपर महंगा है ये। वहाँ 2700 हाँ है, तो यहाँ हाँ पे 3300, तो 20% के आजू 3300। बाजू महंगा हो गया जो आपने हाँ बोला। इन हाँ हाँ शॉर्ट सर, हमें हमें नुकसान कितना हुआ यहाँ पे? 609 रुपये का। 609 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। सर हम्म। नुकसान करना आपको पसंद है क्या? नहीं। सर मैंने भी मेरे सीनियर को पूछा था कि भाई ऐसा नुकसान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ हाँ लेकिन उसने मेरे को बताया कि यार नुकसान करने के लिए मैं भी नहीं आया हूँ, हाँ हाँ मैं भी यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है। तो सर कैसे प्रॉफिट होता है मैं भी दिखाऊं आपको, इन हाँ नुकसान को हाँ नफे में कैसे बदल सकते हैं। हाँ बराबर, देखना हाँ चाहोगे हाँ आप? हाँ हाँ देखूंगा। बराबर। तो सर हम्म। हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट और बजट कितना होता है। हाँ हाँ सर हाँ। यहाँ पे मार्केट में हमारे 2775 हुए, हम्म। हमारे वाले हुए 3378, यानी 609 रुपये आपका 9 नुकसान रुपये है। नुकसान है। हाँ माइनस लिखा ना मैंने, यानी छह सौ हाँ नौ हाँ रुपये का आपका नुकसान हो गया। तो हाँ। ये नुकसान सही में करना चाहिए इंसान को कि नहीं करना चाहिए, वो बताओ मेरे को। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम्म। सर इसमें यदि आप इतना ही नुकसान सही में करोगे तो 60 साल की उम्र में, हाँ यानी 20 साल से मैं गिनता हूँ तो 40 साल तक कोई इंसान काम करेगा, तो उसकी हाँ जिंदगी में 4,38,000 रुपये का नुकसान है। कितने का? हाँ। 4,38,480 का। हाँ। तो मेरे कहने से इतना नुकसान करोगे आप? नहीं नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है सर, 4 लाख का ही तो सवाल है। हम्म। करेंगे ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बराबर। हाँ। चलो देखते हैं। सर आप मार्केट में लेके आते हो तो कुछ फ्री मिलता है क्या? नहीं, फ्री नहीं मिलता है कुछ। नहीं सर, यहाँ पे फ्री में मार्केट में कुछ नहीं मिलता है। आपको आज फ्री हाँ मिला कि नहीं मिला? आज मिला। बराबर। यानी कि हाँ आपको यहाँ पे हर महीने 300 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। हाँ। तो ये 300 फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपका? हुआ। यानी अभी नुकसान 609 होगा या कम हो गया नुकसान आपका? अभी 309 हो गया। 309 रुपये का नुकसान हो गया, बराबर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी इतना तो कर पाएंगे ना, चलेगा ना 309 रुपये हर महीने का नुकसान? नहीं 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 चलेगा। अभी भी इतना भी नहीं चलेगा, ओके। हाँ सर लॉयल्टी बेनिफिट, यानी आप लगातार सामान लेते हो, कोई हाँ। डीमार्ट से लेते हैं या कहीं दुकान के, तो आपको कोई 3-4 महीने के बाद कुछ फ्री मिलता है वहां पे? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता, यानी लॉयल्टी बेनिफिट नहीं, आप लॉयल कस्टमर का कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पे हम्म। लॉयल्टी बेनिफिट होता है 625 रुपया, जो मैंने आगे हाँ आपको हाँ बताया। तो एक हाँ महीने का 625 रुपया लॉयल्टी बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे हाँ। क्या हो गए सर, अभी 316 रुपये 16 प्लस में प्लस। हो गए। हाँ अभी हाँ कर अभी ले सकते हैं सामान? हाँ अभी ले सकते हैं। ले सकते नहीं, लेना ही चाहिए, ये तो फायदे का सौदा है। सर यहाँ पे कोई इनकम होती है आपको? हेलो? हाँ हाँ इनकम होती है यहाँ पे कोई आपको, मार्केट में? हाँ हो। नहीं, मार्केट में मार्केट में नहीं होती है। मार्केट में कोई नहीं इनकम नहीं होती है हुई। मार्केट में। यहाँ पे 8% पहुंच जाओगे तो हम्म। 144, और 11% पे 198 रुपीज का आपको बेनिफिट है। मैं ये बहुत कम से कम वाली फिगर बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हाँ नहीं दिखा, हाँ। मेरे लेवल के लिए दिखा रहा हूँ। तो हम्म। आपको ऑन एन एवरेज यहाँ से 460 से लेके 514 रुपये का बेनिफिट ऑन एन एवरेज रहेगा, यानी 450 से 500 रुपया हर महीने आप कमाओगे, हाँ आप हाँ फायदे में रहोगे। तो सर जो 2700 का प्रोडक्ट मार्केट में था, वो हमारा 2300 या 2200 में पड़ेगा आप, बराबर। तो सर यहाँ पे लेना चाहिए अभी? हाँ लेना चाहिए। बराबर सर। 460 के हिसाब से हम 12 महीने का गिने तो हाँ साल हाँ का होता है 5500 रुपया, और 11% के हिसाब से 6000 रुपये का इनकम होता है ना, फायदा होता है। हाँ ये एक हाँ साल का फायदा है। और सर 60 साल में हमारा फायदा हो जाएगा 3,70,000 रुपया। हाँ हाँ। अभी ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना ये चाहिए। अकेले अकेले की बात है, आपके कोई पार्टनर नहीं है, नहीं आप है। खुद हाँ हाँ अकेले हो तो की बात है। हाँ हाँ। अकेले अकेले काम करने की बात है, अपने बिजनेस को हम्म। एक्सपांड नहीं किया है। नहीं तो सर किया हमें है। हमें समझ में कहाँ पे आया, हम फायदे में कब आते हैं? हम फायदे में जब आते हैं जब हम लॉयल्टी बेनिफिट लेते हैं, लेते हैं हाँ। है ना। लॉयल्टी बेनिफिट यदि हम नहीं लेते हैं, हम्म। है ना, तब तक हम, नुकसान में यहाँ है। से हम फायदे में आ गए, हाँ यहाँ हाँ। तक हम थोड़े बहुत नुकसान में आते हैं। और नुकसान में लॉयल्टी थे। बेनिफिट के लिए करना क्या है हमें? 100 पीवी करना है। स्वैप ही करना है हर महीने। 100 पीवी करेंगे तो हम हमेशा कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे सर, हाँ बराबर। हाँ
ये हाँ। चीज हमें सर यहाँ पे समझनी है। हम्म। क्या समझ में आया सर हमें? हमारा बिजनेस 100 पीवी करने से प्रॉफिटेबल होता है, लिख लो उसमें। प्रॉफिट। हाँ हाँ। 100 पीवी महीने के करने से बिना किसी को जो भी जोड़े हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आ जाता है। ओके। ये 100 पीवी कब से कब करने हैं? 2 तारीख से लेके 2 तारीख से 12 तारीख तक। 12 तारीख की। हाँ। 2 से 12 में लिख लो। 12। 100 पीवी कब करने हैं? 2 से 12 के बीच में। ओके। आपका ज्वाइनिंग का महीना होगा, वो महीने में पूरा महीना छूट है आपको। हाँ हाँ। ज्वाइनिंग के महीने में पूरा छूट है आपको, ओके। लेकिन दूसरे महीने से आपको 2 से 12 में ही खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ। ज्वाइनिंग में क्या होगा सर, आपका हो सकता है 15 तारीख को भी ज्वाइनिंग हो जाए, हाँ हाँ। तो हम आपको पहले नए नए हैं तो उसमें तो माइनस नहीं रख सकते ना आपको। हम्म। इसीलिए पहले महीने में आपको यहाँ पे छूट दी गई है। हाँ हाँ। क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्या क्या सीखे वो जरा बता दो, जो लिखा हुआ है। और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। हम्म। सिस्टमेटिक काम करना है। सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक काम करना है। हम्म। और सेल्स ज्यादा होगा इतनी इनकम भी ज्यादा होगी। हम्म। हाँ। और सेल्स सेल्स को बढ़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। सेल्स बढ़ाने के सेल्स लिए को बढ़ाना एक्सपेंशन करना। पड़ेगा। और मोर पार्टनर बनाना पड़ेगा। हाँ, मोर पार्टनर से मोर टर्न ओपी होगे और मोर पीवी से मोर इनकम होगी। हम्म। फिर टाइम नहीं देंगे तो भी इनकम चालू रहेगी। हम्म। हाँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में थोड़ी कम इनकम होगी। हम्म। हाँ। और 100 पीवी हर महीने करना है हम्म। खरीदी। और बराबर। 2 से 12 तारीख के बीच 2 से करना है। 12 बारह लेकिन तारीख तक हाँ। पहले महीने में पूरा महीना मिलेगा फ्री आपको। फ्री पीरियड पहले है। पहले महीने का पूरी फुल महीना मिलता है। हाँ हाँ। फुल महीना यानी 30 दिन नहीं, वो महीने के अंत तक। आपने हाँ 15 हाँ। तारीख को जो है ना, 15 से 30 31 तक। फिर आप ऐसा मत हम्म। पकड़ो दूसरे महीने की, हाँ कैलेंडर हाँ। मंथ पकड़ते, 30 डेज नहीं हाँ पकड़ते। हाँ। हाँ हाँ हाँ। बराबर। ओके ओके। ये बेनिफिट कितना इनकम आएगा वो सारी चीजें दिखा अभी। हम्म।